السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ایران کے نائب صدر محسن منصوری نے سرکاری ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 ہیلی کاپٹرز کے قافلے میں شامل ایک ہیلی کاپٹر کو گزشتہ روز خراب موسم اور دھند کے باعث تبریز شہر سے 100 کلومیٹر دور پہاڑی علاقے میں حادثہ پیش آیا۔ آج صبح ہیلی کاپٹر کا ملبہ ملنے کے بعد حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور گورنر تبریز کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر پر سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرنا نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر کی محافظ ٹیم کے سربراہ مہدی موسوی اور سپریم لیڈر کے نمائندے محمد علی الہاشم بھی حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر پر سوار تھے۔ انجمن ہلال احمر ایران کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی میتیں تبریز شہر منتقل کی جا رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے اول نائب صدر محمد مخبر کو ملک کا عبوری صدر مقرر کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ گزشتہ روز صوبہ مشرقی آذربائیجان میں شدید دھند کے باعث پہاڑی علاقے سے گزرتے ہوئے پیش آیا تھا۔ وہ ایران اور آذربائیجان کے سرحدی علاقے میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز شہر جا رہے تھے۔ ڈیم کی افتتاحی تقریب میں آذربائیجان کے صدر نے بھی شرکت کی تھی۔ اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ کی پیش رفت کو بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ اچھی خبر کی امید تھی لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے اس بڑے نقصان پر ایرانی قوم کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حادثے میں شہید ہونے والوں کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عظیم ایرانی قوم اپنی روایتی ہمت کے ساتھ اس سانحے پر قابو پا لے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ ایران کے صدر اور وزیر خارجہ کے پاکستان کے تاریخی دورے کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ ان کی وفات پر پاکستان میں یوم سوگ منایا جائے گا اور صدر رئیسی اور ان کے ساتھیوں کے احترام اور برادر ملک ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر پرچم سرنگوں رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں وفات پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور حادثے میں جاں بحق دیگر افراد کے سوگواران سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے مسلم امہ کے لیے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ صدر رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ ان کی خدمات کو ایران، پاکستان اور عالم اسلام میں یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صدر رئیسی فلسطینی اور کشمیری عوام سمیت عالمی سطح پر مسلمانوں کے درد کو دل سے محسوس کرتے تھے۔ آج پاکستان ایک عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگوار ہے۔ گزشتہ ماہ ہمیں پاکستان میں صدر رئیسی کی میزبانی کا احساس حاصل ہوا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں نے انہیں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم پایا۔ اللہ تعالیٰ صدر سید ابراہیم رئیسی کی روح کو سکون اور ناقابل تلافی نقصان کی اس گھڑی میں ان کے اہل خانہ اور ایران کے عوام کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔ اور پاکستان کی حکومت اور عوام نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ہم ایران کے عوام کے ساتھ ہیں اور مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں شہداء کے اہل خانہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کے ساتھ ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان قابل احترام رہنما تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ صدر ابراہیم رئیسی کی پاک ایران تعلقات کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے گزشتہ ماہ پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ دفتر خارجہ نے پاک ایران دوستی اور تعاون کو آگے بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حاقان فیدان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات دفتر خارجہ اسلام آباد میں ہوئے۔
इन मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताउन में पेशरफ्त के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों ने तजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात में पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के 7वें इजलास की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इससे कबल तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के सिलसिले में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि किर्गिस्तान से तलबा की वापसी का सिलसिला जारी है। खुसूसी तैयारा मज़ीद 170 तलबा को लेकर लाहौर पहुँच गया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने तलबा का इस्तकबाल किया। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि उनके लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मामले पर वज़ीर आज़म को लम्हा बलम्हा बाखबर रखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि तलबा को किर्गिस्तान में कोई मुश्किल पेश न आए। हुकूमत पाकिस्तान ने किर्गिस्तान में जो एरो नोमैड है उसको स्पेशल परमिशन दी है कि वो दिन की 4 फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकें। एविएशन डिवीज़न से ये परमिशन दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पे मैंने 175 स्टूडेंट्स को रिसीव किया है, इनसे बातचीत की है। ऑब्वियसली उनके मसले मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। उनको ये यकीन दिलाया है कि हुकूमत पाकिस्तान किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते में है और जो मुमकिन इक़दाम कर सकते हैं कर रहे हैं। यहाँ पे इनको फूल पेश किए हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया गया है और हुकूमत की ट्रांसपोर्ट पे इनको इनके घरों में भिजवाया जाएगा। यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया गया है। तो लाहौर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मुकम्मल इंतजाम हुकूमत ने किए हैं जो कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहाँ जो मुतशद्दद वाक़यात हुए, लोगों में खौफ व हिरास था, उसके लिए भी हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। जो हमारे एम्बेसडर हैं वो जितनी मेहनत कर सकते हैं वो कर रहे हैं और लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि हालात बेहतर हो चुके हैं। फॉरेन मिनिस्टर का भी रब्ता हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने ये खसूसी इंतजाम किए हैं पाकिस्तान अराइवल पे और इसके साथ साथ वो किर्गिस्तान में सफ़ीर के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं और बातचीत कर रहे हैं, हालात का जायज़ा ले रहे हैं। हालात बेहतर हो चुके हैं मगर फिर भी जो इधर स्टूडेंट्स की एप्रीहेंशंस हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको दूर किया जाएगा और जैसे इनको घर भिजवाने के इंतजाम किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो आराम से नहीं बैठेगी और तमाम इक़दाम करेगी जो इनकी सहूलत के लिए कर सकते हैं। बसेस का इंतजाम हैं, हर चीज़ जो है इनकी केटर्ड फॉर है और कोशिश करेंगे कि इनको बाहिफाजत जो है वो घर पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म साहब की हमें खसूसी हिदायत है, लम्हा ब लम्हा वो बाखबर अपने आप को रखे हुए हैं, हमारे साथ भी राब्ते में हैं, किर्गिस्तान में भी सफ़ीर से राब्ते में हैं। स्टेट लाउंज खोला गया, स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स बनाए गए, इनको रिसीव किया गया और कोशिश की जा रही है कि एयरपोर्ट पे इनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है अपने तय। इसी हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते हैं। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर एक और परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने तलबा के तासुरात जाने और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने तलबा से बिश्केक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में मालूमात भी लीं। तलबा से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने इस वाक़े के फ़ौरी बाद पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़ी से इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि मज़ीद परवाज़ों के ज़रिए तलबा वतन वापस लाएंगे। जो तलबा वतन वापस आना चाहें, हुकूमत पाकिस्तान उनको हर किस्म का ताउन फ़राहम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत है। पाकिस्तानियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तानी तलबा को किर्गिस्तान में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमें इसका एहसास है। उन्होंने कहा कि मामले पर वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना मुसलसल राबिते में है। किर्गिस्तान से वापस आने वाले तलबा से एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तलबा के वालिदैन को पेश आने वाली मुश्किलात और परेशानी का एहसास है। मामले पर किर्गिस्तान की हुकूमत से बात की है। हुकूमत वापस आने वाले तलबा को हर मुमकिन मदद फ्राहम करेगी। और सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी हिदायत पर ऐवान सदर ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से राबता किया। ऐवान सदर ने बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तानी तलबा को तालीम के लिए साजगार माहौल की फराहमी और तालीम जारी रखने के लिए इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि किर्गिज़ हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि किर्गिज़ हुकूमत और जामियात पाकिस्तान वापस जाने वाले तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करेगी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस फोर्सेज के सरबराह जनरल एंगस जे कैम्बल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आलमी और इलाकाई सलामती के माहौल, दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन और दो तरफा पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने दोनों अफवाज के दरमियान ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के आला पेशा वराना मयार, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उनकी नुमाया कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुसलसल कोशिशों को सराहा। एक और अहम खबर यहाँ पर आपको देते हैं और खबर है मुल्तान से। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का 148 के ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अली कासिम गिलानी ने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने 85,863 वोट लेकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक को 32,000 से जायद वोटों से शिकस्त दी। हल्के में पोलिंग का अमल नहायत शफाफ रहा और अमन व अमान की सूरत हाल को मुनज़्ज़म तरीके से बरकरार रखा गया। 275 पोलिंग स्टेशन पर डाले गए वोटों में से 1,223 वोट मुस्तरद किए गए। कामयाब उम्मीदवार अली कासिम गिलानी ने अपनी जीत पर हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत पर मबनी सियासत और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की अवाम से मोहब्बत की बदौलत उन्हें कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इंडस्ट्रियल जोन मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। शेखुपुरा में रचना इंडस्ट्रियल पार्क में तकरीब से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इंडस्ट्री की तरक्की के लिए हुकूमत ने नई पॉलिसीज़ का इजरा किया है। SMEs मईशत के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। दुनिया भर में सनती तरक्की जोन्स के जरिए ही मुमकिन हुई। हज एक मुशक्कत तलब इबादत है। पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन मक्का मुकरमा ने शदीद बीमार पाकिस्तानी आज़मीन हज के हस्पताल में बेहतरीन इलाज मुआलजे के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं रिजवान आरिफ। हज ऑपरेशन 2024 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और वहाँ मौजूद तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मुझे बेहद मैं समझता हूँ कि रिलीफ मिला विज़िट करके, स्पेशली ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, ब्रिगेडियर साहब और जितने बाकी साथ टीम है मेडिकल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र भी है कि हर बंदा जो है, इवन जो मावनीन आए हैं मेडिकल भी बाकी भी, बहुत ही दिलजोई से काम कर रहे हैं और खलूस नीयत से काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस साल जो है हज इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा और हम हाजियों की ज़रूर दुआएं लेंगे। पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन मक्का मुकरमा में माहिर डॉक्टरों की जेर निगरानी इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, इसमें डेंटल सर्जन्स भी हैं, इसमें पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, इसमें सर्जन्स हैं, इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑल स्पेशलिटीज़ हैं। हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट हैं, लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट हैं ऑलमोस्ट 29 to 30 तकरीबन टेस्ट हमारे पास होते हैं। जिस तरह की बीमारियां थी उस तरह की तकरीबन सारी मेडिसिन हमारे पास और बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हम लेकर आए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन मक्का मुकरमा आज़मीन हज को मिना, मुजदलफा और अराफात में मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी ताकि आज़मीन कराम बीमारी के सबब हज की सआदत से महरूम ना रह सकें। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मक्का मुकरमा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बीजिंग अफगानिस्तान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में उनका कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में मुबैना तौर पर चीनी शहरियों पर हमले के लिए इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान सी पैक में अफगानिस्तान की शमूलियत का मुखालिफ नहीं है। हम पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए चीन से ताउन की ख्वाहिश रखते हैं। नाज़रीन, गजा और रफा पर इसराइल की जानिब से हमलों में मज़ीद शिद्दत आ गई है। सेहूनी फौज ने जबाली और नसीरात पनाहगुज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी की है।
دہشت گردی کی کارروائیوں میں خواتین اور بچوں سمیت 31 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء میں ایک ہی خاندان کے 20 افراد بھی شامل ہیں۔ کمال عدوان ہسپتال کے قریب اسرائیلی طیاروں کے حملوں میں کئی رہائشی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران مزید 70 فلسطینی شہید اور 110 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی صفاقیت میں کم از کم 35,456 فلسطینی شہید اور 79,476 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کی تنظیم نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس سے اب تک 8,680 فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے۔ ان میں وہ ہزاروں بالغ اور بچے شامل نہیں ہیں جنہیں اسرائیلی فوج نے غزہ کی عارضی جیلوں میں حراست میں لیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ ادھر رفح پر اسرائیلی حملوں کی شدت اور خوف کے باعث فلسطینیوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کم از کم 9 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کے جنگی جرائم کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اردن وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے غزہ بھر میں شدید فضائی اور زمینی حملے شروع کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے نائب سیکریٹری جنرل مارٹن گرفٹس کا کہنا ہے کہ غزہ تک امداد کی روک تھام مکمل تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ رفح اور کریم ابو سالم کراسنگ مکمل بند ہیں۔ ایندھن ختم ہونے سے امداد ضرورت مند لوگوں تک نہیں پہنچ رہی۔ رفح میں اسرائیلی دراندازی نے غزہ کی پٹی میں پہلے سے خطرناک انسانی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ مودی سرکار کی پالیسیوں سے نالاں بھارتی فوجی اپنی جانیں لینے لگے۔ مودی سرکار میں بھارتی فوجیوں میں خودکشیوں کے رجحان کی شرح میں سنگین حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ 18 مئی کو مقبوضہ وادی میں تعینات بھارتی فوج کے میجر مبارک سنگھ نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی ہے۔ بھارتی میجر نے جموں کشمیر کے علاقے اکھنور میں اپنے کمرے میں خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوجی کی خودکشی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی 16 نومبر کو ضلع ادھم پور میں 38 سالہ نائک ہریش سنگھ نے گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ جنوری 2007 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں تعینات خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد 601 تک پہنچ چکی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کی نااہلی اور ناقص پالیسیوں کی بدولت بھارتی سیکیورٹی فورسز میں ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سنگین حد تک بڑھ چکا ہے، جو بعد میں خودکشی کا سبب بننے لگا ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں موجود بھارتی سیکیورٹی فورسز کے نصف سے زائد اہلکار شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ رائٹرز کے مطابق دوسرے ممالک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور طاقت کے نشے میں چور مودی سرکار اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کی مشکلات سے بے پرواہ ہے۔ بھارتی فوج میں شمولیت کے لیے متعارف کرائی گئی اسکیم اگنی ویر میں عوام کی عدم دلچسپی۔ اقتدار کی ہوس میں مودی سرکار نے بھارتی فوج کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے بھارتی فوج میں شمولیت کے لیے انتہائی بے معنی اگنی ویر اسکیم متعارف کروائی گئی ہے۔ ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ نے بھی مودی سرکار کی جانب سے اگنی ویر اسکیم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سکھویندر سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ اگنی ویر اسکیم کے آغاز کے بعد نوجوان بھارتی فوج میں شامل ہونے کا جذبہ کھو رہے ہیں۔ اگنی ویر اسکیم سے بھارتی نوجوانوں کی فوج میں شمولیت کے جذبے کی سخت حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ انہوں نے مودی سرکار کو اگنی ویر اسکیم پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اب نوجوانوں میں ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے بھی مودی سرکار کی جانب سے بھارتی فوج کے لیے متعارف کرائی گئی اگنی ویر اسکیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی کا یہ کہنا تھا کہ مودی کی جانب سے اگنی ویر اسکیم زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ اگنی ویر اسکیم متعارف کروانے سے مودی سرکار کا بھیانک چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس امر میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ مودی سرکار اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک کے جوانوں کا سودا کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی ہے۔ مزید خبروں میں بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ممتاز شہید کشمیری رہنماؤں پر میر وائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی نون اور شہدائے حول کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کشمیریوں کی مشکلات اور قربانیوں کو اجاگر کیا۔
उन्होंने कहा कि कत्लो गारत, नज़रबंदियों और जुल्म और जबर के बावजूद कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा अपने हक़ के खुदरादियत के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। KMS की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में भारत और मकबूजा इलाके की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का पर्दा चाक किया गया। रिपोर्ट में कश्मीरियों को उनके सियासी नज़रिए की वजह से निशाना बनाए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत के इक़दामात को इंतहाई ज़ालिमाना करार दिया गया। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कश्मीरियों ने भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए एक नई हिकमत अमली के तहत इंतखाबात में शिरकत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये शिरकत भारतीय पॉलिसीज़ की तौसीक नहीं बल्कि ड्रामाई तौर पर तब्दील होते हुए सियासी मंजरनामे की अक्कासी है, क्योंकि भारत नवाज सियासी जमातें अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत की तरफ से कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद भारतीय हुकूमत पर खुलेआम तनकीद कर रही हैं। एडोबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टडी नाउ पे लेटर के इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस दे दिया है। ये पाकिस्तान के इदारों में स्टडी नाउ पे लेटर जैसे इक़दामात के लिए पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। SIFC के तहत कायम किए गए तालीमी अहदाफ को हासिल करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये अव्वलीन मनसूबा है। सार्फिन को बेहतरीन तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ डिजिटल कर्ज़ों के कारोबारी मॉडल्स को तस्लीम किया है जो बाआसानी कर्ज़ के हसूल के लिए सहूलियात पेश करते हैं। मंसूबे का तारुफ तलबा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कर्ज हासिल करने की जानिब अहम कदम है। इस इक़दाम का मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए माली इमदाद की पेशकश करके कम आमदनी वाले तलबा के लिए फंडिंग की रुकावटों और महंगे तिजारती मुतालियाती कर्ज़ों पर इन्हसार को कम करना है। कंपनी एक सारिफ दोस्त डिजिटल इंटरफेस तैयार करने का इरादा रखती है जो दरख्वास्त के अमल को हमवार करेगा और इनफरादी तलबा के माली हालात के मुताबिक अदायगी के लचकदार मंसूबे पेश करेगा। डिजिटल अमल के जरिए तलबा अपने कर्ज़ों के लिए आसानी से दरख्वास्त दे सकते हैं और उनका इंतज़ाम कर सकते हैं, जिससे वो माली मुश्किलात पर परेशान हुए बगैर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकते हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से पेशावर के इलाके हयाताबाद के संगम पर फ्रंटियर कोर टीचिंग हस्पताल को तामीर करके फ़ाल कर दिया गया। 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद होगा। फ्रंटियर कोर टीचिंग हस्पताल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इमरजेंसी, 20 क्लिनिक्स पर मुश्तमिल OPD, आंख, नाक, कान और गले का इलाज, दिल के अमराज के लिए खुसूसी वार्ड्स, बहाली और फिजियो डिपार्टमेंट और दांतों के इलाज की सहूलत मुयसर है। इसके अलावा इमरजेंसी क्लिनिक्स, 5 बड़े और छोटे ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक, फार्मेसी, गायनी कॉम्प्लेक्स, गायनी ऑपरेशन थिएटर, शीरखार बच्चों की देखभाल, मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग 10 स्पेशल वार्ड्स, ICU, ECG और मरीजों के लिए वार्ड्स के साथ साथ 28 स्पेशल कमरे भी बनाए गए हैं। हस्पताल में ख़वातीन मरीजों के इलाज के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की ख़वातीन डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे दस्तयाब हैं। फ्रंटियर कोर टीचिंग हस्पताल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से आवाम को सेहत की सहूलियात की फ्राहमी के हवाले से अहम संग मील है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। सिपाही सईद कादिर शहीद इंतहाई निडर सिपाही थे जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही सईद कादिर शहीद ने 20 अगस्त 2015 को ऑपरेशन अलमीज़ान के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाई वतन में जामे शहादत नोश किया। सिपाही सईद शहीद को उनकी बहादुरी और कुर्बानी के एतराफ़ में तमग़ा बसालत से भी नवाजा गया था। लवाहिकीन ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि इस मुल्क के लिए हमारे बच्चे कुर्बानियाँ देते रहेंगे। वालिदैन की भी बहुत ज़्यादा केयर करते थे और बच्चे की तो उनमें जान थी, तो बहुत ज़्यादा सबके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हमारे तकरीबन 3 साल नहीं हुए थे उनकी शहादत तक। जब वो शहीद हुए तो हमारा बेटा 1 साल और 1 माह का था और आखिरी टाइम जो 1 महीना जो था ना शहादत से 1 महीना पहले वो बार बार फ़ोन करते थे और यही कहते थे मेरी वालदा और हारिस का ख्याल रखना। उनकी कमी शायद पूरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगी, वो ना मुझे और ना मेरे बेटे को ख़त्म होगी। जो ज़िंदगी है वो अभी उन्हीं की है और अपने बेटे के लिए बस फ़ख्र है मुझे उनकी शहादत पर, और उन्हें भी शौक़ था जो उन्हें मिल गया। वालिद की कमी इसकी ज़िंदगी में मैं नहीं पूरी कर सकती, ना कोई और शख्स पूरा कर सकता है, और जो मेरी है वो मैं अपनी निभा रही हूँ। स्कूल छोड़ती हूँ, स्कूल से लाती हूँ, इसकी सब बातें उन्हीं की तरह है। अपने बहन भाइयों की केयर करना और इसकी आदतें भी उन्हीं से मिलती हैं और ये शक्ल में भी उन्हीं की तरह है।
सब ने बारी बारी जाना है, लेकिन ये जो शहीद की मौत है ना, ये फ़ख्र की बात है पेरेंट्स के लिए, बहन भाइयों के लिए, बीवी के लिए, सब के लिए। दहशतगर्दों के लिए मेरा यही पैगाम है, वो अपनी जितनी कोशिश कर लें। पाक फौज और जो अवाम है ये कभी भी पीछे नहीं हटेगी और अपने वतन के लिए जाना बजाना लड़ते रहेंगे और जाने देते रहेंगे। बचपन से वो बहुत शौकी था, उसको शौक था एक कि मैं आर्मी के अंदर जाऊँ। अपने शौक से उसने जनाब आर्मी ज्वाइन की। उसका वो शौक था कि मैं आर्मी के अंदर जाके कोई ऐसा मेरे से काम हो कि जिससे पाकिस्तान का रोशन हो। उसके लिए अल्लाह ताला ने उसकी शहादत को उसने कबूल किया, उसको उस मरतबे तक वो पहुंचा। हमारी जो वालदा थी, वो वालदा बिल्कुल जैसे उन्हें खबर मिली, उन्हें कभी एक से बिल्कुल सब कभी एक आंसू तक नहीं बाया। उन्हें कहा कि भाई अल्लाह ताला ने उसकी शहादत अल्लाह ताला कबूल करे उसकी। जिस कब्रिस्तान के अंदर पहला हमारा शहीद है, हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि उसने अपनी जान अल्लाह की राह में दी, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दी। अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए अमा वक्त तैयार है। उसके लिए हमारी औलाद भी हाज़िर है, हमारे भाई भी हाज़िर हैं, हम खुद भी हाज़िर हैं। दहशतगर्दों के लिए पैगाम यही है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसकी फ़ौज इस्लामी फ़ौज है और जो हर मुश्किल हालात में किसी भी एक इंच की ज़मीन के एक जो इंच है ना, उसकी हिफाजत करना वो जानती है। तो दहशतगर्द इंशाल्लाह अब जो उन्होंने ये इक़दाम उठा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंशाल्लाह एक दिन वो ज़रूर नाकाम होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जितनी हमारी अफवाज इंशाल्लाह सुखरू होंगी। उसको शुरू से शौक़ था कि मैं आर्मी में जाऊँ। सबके साथ उसका एक बड़ा अच्छा रिलेशन था। सईद शुरू से ही वो बहुत खुश तबीयत बंदा था और लोग उससे बहुत पसंद करते थे, हमेशा उसकी तारीफ़ करते थे। कोई उसके यूनिट का कोई बंदा मिलता था, दोस्त मिलते थे तो हमेशा यही कहते हैं कि सईद बहुत जो है ना वो दिल का साफ बंदा है। भाई वो कहते हैं ना कि बाजू होते हैं, जब भाई चले जाते हैं तो कट जाते हैं बाजू। हमें ये एक सहारा मिला है कि वो शहादत के रुतबे भी गया है। अगर हमारी कहीं भी हमारे खून की कोई ज़रूरत पड़े तो हमारा खून हाज़िर है। दहशतगर्द जो है ना वो उनका कोई मज़हब है, कोई उनका एजेंडा है या उनकी कोई हमदर्दी है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। सब लोग अपने जहन को क्लियर रखें कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, उसके पूरी ताकत के साथ पूरी कौम लड़ती रहे। मैं पाकिस्तान के तमाम जितने भी शहदा हैं उनकी फैमिलियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शहीद एक वो ज़िंदा हैं और उन्हीं शहीदों की खून की बदौलत हमारा मुल्क, हमारी मिलत और ये इस्लाम का किला कायम है और उन पर हमें फ़ख्र है, पूरी कौम को फ़ख्र है। पंजाब हुकूमत के क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट के तहत 4 क्लिनिक्स ने मरी और गलियात के देही इलाकों में लोगों को उनके घर की दहलीज पर इलाज और मालजे की फराहमी शुरू कर दी है। इसी हवाले से आपको बताते हैं यासिर वकार शाह की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की तरफ से मरी को दी जाने वाली क्लिनिक ऑन व्हील्स में माहिर डॉक्टर, नर्स, लेडी हेल्थ वर्कर, डिस्पेंसर और वैक्सीनेटर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन क्लिनिक्स में बच्चों के हिफाजती टीके, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की स्क्रीनिंग और बीमारियों की तशख़ीस के लिए बुनियादी टेस्ट की सहूलत मुफ्त दी जा रही है। माहिर डॉक्टर मलेरिया और शुगर के मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड समेत जदीद सहूलतों से आरास्ता क्लिनिक पहाड़ी और दूर दराज इलाकों के आवाम को इनके घर की दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलत फराहम कर रहे हैं। यासिर वकार शाह, PTV न्यूज़, मरी। और पाकिस्तान में दिल की बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी सिलसिले में सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। मुलाहिज़ा कीजिए आयशा आफरीन की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत के तहत चलने वाला कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जदीद तरीन सहूलियात के बाइस अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला ये इदारा बगैर मुआवजे के फौरी और तसल्ली बख्श इलाज फराहम करता है। NICVD के 10 अस्पताल और सीने के दर्द में मुब्तला मरीजों की फौरी इमदाद के लिए 29 चेस्ट पेन यूनिट्स पूरे सूबे सिंध में फ़ाल हैं। गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स पूरे सिंध में उनमें मुफ्त इलाज होता है। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मयारी इलाज इस जगह हो रहा है और मैं समझती हूँ ये दुनिया भर में आप जिधर भी देख लें सोशल इंटरवेंशंस होती हैं गवर्नमेंट्स की,
उनमें मैं समझती हूँ सिंध पेश है। NICVD में साल 2023 में 20,000 से ज़ायद एंजियोप्लास्टी और 10,000 इलेक्टिव और अर्ली इन्वेसिव एंजियोप्लास्टीज अंजाम दी गई हैं और 4,500 से ज़ायद हार्ट बाईपास सर्जरीज भी की गई हैं, जबकि OPD में यौमिया 1200 से 1300 मरीजों को देखा जाता है। कराची शहर के लिए इस तरह के 5 अस्पताल चाहिए और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है LRD में जो नया सेंटर बना रहे हैं 1200 बेड। गवर्नमेंट ने ये किया है कि हमें इंटरमीडिएट किस्म के अस्पताल हैं जो 50 से 100 बेड वाले, वो हमें देने शुरू किए हैं कि हम उनको अपग्रेड करें। इस इदारे से दीगर सूबों से आने वाले मरीज भी मुस्तफीद हो रहे हैं। 2019 से अब तक दीगर सूबों से आने वाले 12 लाख मरीज इस इदारे से शिफायाब हो चुके हैं। यहाँ पर अच्छा इलाज होता है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। चार्जेस वगैरह तो किसी चीज़ के भी नहीं है, यहाँ तक कि जो है वो हमें जो भी ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ वगैरह दी जा रही हैं, जो भी टिप्स लग रही हैं, जो भी इंजेक्शन लग रहे हैं, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इक्विप करवाया और 2 स्टैंड लगे हमारे को। यहाँ के डॉक्टर ने सब अच्छे कोऑपरेट किए, जितने डॉक्टर है। दादू ज़िले से मैं गले का एक्सरे कराया, एंजियोग्राफी कर ली, नर्सें बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं। इन्होंने फ़ौरन मेरा यहाँ ECG करके फ़ौरन एंजियोग्राफी इन्होंने की, माशाल्लाह बेहतरीन यहाँ ट्रीटमेंट दिए इन्होंने मुझे। NICVD की जानिब से कराची और टन्नू मोहम्मद खान में फालिज का जदीद इलाज भी मुतारिफ कराया गया है। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता इस इदारे में अवाम को आला तिब्बी सहूलियात मैसर हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों की जानिब से रिफ़ाह आमा के लिए कायम किए गए अस्पताल में अमराज़ क़ल्ब का इलाज शुरू कर दिया गया है। मुस्तहिक अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलत बिल्कुल मुफ्त फ्राहम की जा रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। आज़ाद कश्मीर में अमराज कल्ब के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफे के पेश नज़र मुज़फ़्फ़राबाद के नवाही इलाके टंडाली में रफ़ाई बुनियादों पर कायम मिडलैंड डॉक्टर्स अस्पताल में अमराज कल्ब का बाकायदा इलाज शुरू कर दिया गया है, जहाँ मुस्तहिक अफराद के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत मुफ्त फराहम कर दी गई है। इस सिलसिले में कायम की गई जदीद सहूलियात से आरास्ता कैथ लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया गया है। हमने कॉर्नरी एंजियोग्राफी स्वीट की इनॉग्रेशन की है। ये फैसिलिटी जो है ये पूरे कश्मीर के लिए हमने बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे वो तमाम हजरात और औरतें जिनको ज़रूरत है, जो ज़कात के मुस्तहक़ है, उनका इलाज मुफ्त होगा। टंडाली में जो हमारा MDMI का सेंटर है, इसमें ये हम ओपनिंग कर रहे हैं। लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इब्तदाई तौर पर 8 मरीजों का कामयाबी से इलाज किया गया। हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एंजियोप्लास्टी की है, एक स्टेंट उनकी LED में डाला है और प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट सक्सेसफुली एंड द पेशेंट इज़ डूइंग फाइन। रफ़ाए आमा के लिए काम करने वाले इदारे न सिर्फ अवामुन नास के लिए बड़ी सहूलत हैं, बल्कि हुकूमत का बोझ भी बांट लेते हैं। लिहाजा हुकूमत की जानिब से ऐसे अदारों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, टंडाली, ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। तफ्तीशी अमल में क्राइम सीन यूनिट्स का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जहांगीर अली। कराची में अब क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठा करने के लिए बाकायदा एक अलग यूनिट बना दिया गया है, जो शहर भर में होने वाले वारदात की जगह पर पहुंचता है और जदीद टूल्स और किट्स की मदद से शवाहिद को जमा करता है। क्राइम सीन चूँकि बुनियादी एक यूनिट है हमारा, जो क्राइम सीन के ऊपर जाकर बाकायदा जो है वहाँ पर उसको सिक्योर करते हैं। नवंबर 2019 में पहला क्राइम सीन यूनिट कायम किया गया था। पहले फेज में 8 यूनिट्स कायम किए गए, जो थाना क्लिफ्टन, दरख्शा, बगदादी, फैरोजाबाद, सऊदाबाद, एयरपोर्ट और पीराबाद थानों में वाक़ हैं। इन यूनिट्स में 300 एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। क्राइम सीन यूनिट में फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, DNA, फाइबर और दीगर शवाहिद शामिल हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में क्राइम सीन यूनिट ने 3,342 शवाहिद इकट्ठे किए, जिनमें 1,439 फिंगरप्रिंट्स, DNA के 122, जबकि हथियारों के 68 और दीगर वाक़यात में 1,188 शवाहिद शामिल हैं। शवाहिद जमा होने के बाद इनको पुलिस के तफ्तीशकारों को दिया जाता है, जिसके बाद मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मदद मिलती है। जराइम के केसेस को हल करने के लिए क्राइम सीन यूनिट कलीदी किरदार अदा करता है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब बात करते हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून की जिसने घर पर इंसान दोस्त कीड़े पाल रखे हैं। ताहिरा अंजुम ये काम करके महाना लाखों रुपए कमाती हैं। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं सईद वजीर की ये रिपोर्ट। ज़मीन पर मौजूद तमाम हशरातुल अर्ज़ बाइस नुकसान नहीं, बल्कि कुछ इंसान को फ़ायदे भी पहुंचाते हैं। आइए आज आपको
ऐसे ही पैदामंद कीड़ों से मिलवाते हैं। यह है 28 साल घरेलू खातून तायरा अंजम, जिन्होंने अपने ही घर में इंसान दोस्त कीड़े पालना शुरू किए। मीलवार्म फार्मिंग और सोनिया नामी कीड़े पालना एक मुनाफा बख्श कारोबार है। 1.5 साल लगाने के बाद मैं इस जगह पे पहुंच चुकी हूं कि अब मैं इन्हें फरोख्त कर रही हूं। मीलवार्म मुर्गियों, मछलियों और दुनिया भर में अरबों जो परिंदे पाए जाते हैं उनके खुराक का ये अहम जुज है। बीटल्स और लार्वा की पसंदीदा खुराक ताज़ा सब्जियां और चोकर हैं। काम मुश्किल नहीं है, मेहनत तलब जरूर है और जो इंसान मेहनत करता है वो जरूर कामयाब होता है। खवातीन घर बैठे न सिर्फ ये कारोबार कर सकती हैं बल्कि खवातीन माशी तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकती हैं। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गिलगित बल्तिस्तान में चेरी का फल पककर तैयार हो चुका है। लजीज फल जून के वस्त तक बाजार में मौजूद रहता है। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं गिलगित से शेर मोहम्मद। गिलगित में मौसम बहार का पहला फल चेरी पकने लगा है। गिलगित बल्तिस्तान में चेरी फल तमाम अजला में पाया जाता है। ताहम गिलगित शहर के करीब नोमल गांव चेरी के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ लोगों ने बड़ी तादाद में बागात और घरों में चेरी के दरख्त लगाए हैं। जो फल दे रहे हैं वो 50 से 60 हैं। ठेकेदार इधर आके खुद तकरीबन कोई 3 से 3.5 लाख रुपए सालाना दे के ले जाते हैं और सीजन के दौरान लोग चेरी फरोख्त करके खासी रकम कमा लेते हैं। नॉर्मल में ज्यादातर इस वक्त जो आलू के बाद सबसे ज्यादा काश्त होने वाली जो हमारे पास फल है वो ये चेरी है। चेरी के ताजिर चेरी पकने से पहले ही नोमल समेत दीगर इलाकों में पहुंच जाते हैं और पूरे बागात ठेके पर उठा लेते हैं और फल पकने के बाद दरख्त से उतारकर पैकिंग करते हैं और मुल्क समेत बैरून ममालिक भी बेच देते हैं। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, गिलगित। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, महकमा मौसमियात ने हीट वेव से खबरदार कर दिया है। सिंध के अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी हीट वेव से मुतासर होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को मोहतात रहने की तलकीन की है। मजीद जानते हैं मरियम मलिक से। सूरज का पारा हाई, झुलसा देने वाली गर्मी के साथ लू के थपेड़े, दिन के औकात में घर से बाहर निकलना मुहाल होने लगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव कई रोज तक बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई के आखिरी दिनों में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने से जल्द और सेहत के लिए नुकसानदेह गर्म हवाएं शहरियों को मुतासर कर सकती हैं। डॉक्टर्स ने गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। हीट वेव से ऐसी कुछ बीमारी जिस तरह जल्द की बीमारी और डिहाइड्रेशन हो सकती है। बगैर किसी जरूरत दिन के टाइम हम घर से ना निकले और अगर घर से निकलेंगे तो सर डाम के निकले। ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। डिहाइड्रेशन की सूरत में हम ORS और इस तरह की फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। हमारे बच्चे अक्सर ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्पाइसी और शरबत और ये चीजें लेते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करें क्योंकि बच्चों को डिहाइड्रेट करते हैं। ORS अगर पी सकें तो वो एक दिन में, ताकि आपकी बॉडी से नमकियात जो है वो खारिज अगर होती हैं तो उसको रिप्लेस किया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव यानी शदीद गर्मी की लहर जून में भी बरकरार रहेगी। इस दौरान मौसम की अदा यकसर बदल देने वाली बारिशों का इम्कान नहीं। हाँ, मगर गर्द आलूद हवाओं का सामना जरूर हो सकता है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर समेत पंजाब भर में 21 से 27 मई के दौरान शदीद हीट वेव का खदशा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं लाहौर में मौजूद अपने नुमाइंदे मौज़िमुद्दीन से। जी मौज़म, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और पंजाब के दीगर शहर इस पर शदीद गर्मी की लपेट में हैं। अगर मैं गुज़श्ता रोज़ की बात करूँ तो लाहौर शहर में गुज़श्ता रोज़ 44 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि कम से कम 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 20% था। आज अगर लाहौर शहर की बात करें तो इस वक्त लाहौर शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुँच चुका है, जबकि आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि 44 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस हफ्ते लाहौर शहर का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा सकता है। PDM पंजाब ने पंजाब भर में 21 से 27 मई तक
हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने अपनी इंतजामात शुरू कर दिए हैं। पीटीआई में पंजाब ने महकमा सेहत को डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख करने का कह दिया है। मुख्तलिफ अस्पतालों में काउंटर बनाए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर पानी के कूलर्स नस्ब किए जा रहे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ बैनर्स अवेजा किए जाएंगे जिससे शहरियों को हीट वेव की आगाही दी जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी पंजाब हुकूमत को अहकाम जारी कर दिए कि शहरियों को हीट वेव से बचाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए। वज़ीर तालीम पंजाब ने स्कूलों में छुट्टियों का भी अंदिया दे दिया। जो छुट्टियां हैं गर्मियों की उसका ऐलान आज या कल में उसका कहते हैं नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और ये कहना था कि बच्चों को गर्मी से बचाना इस पर अवलिन तरजीह है। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर कूलर नस्ब किए जा रहे हैं और यही उनकी कोशिश है कि शहरियों को दिया जा सके। तबी माहिरीन का ये कहना है कि शहरियों को चाहिए कि घर से बाहर निकलते अपने सरों को ढांप कर रखे, हल्के रंग के कपड़े पहने, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि हीट से बचा जा सके। तबी माहिरीन ने शहरियों को घरों से बगैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज की हिदायत की है। उनका ये कहना है कि इन आखिरी मई के 10 दिनों में खास तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है और शहरियों को चाहिए कि अपना खास तौर पर ख्याल रखें ताकि हीट वेव से बचा जा सके। जी नाज़रीन, शहर कायद में हीट वेव के पेश नज़र सरकारी हस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जहांगीर अली से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, शहर कायद में मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो है हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिया गया है। कराची के डिना अस्पताल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिया गया है, जबकि आबादी सईद अस्पताल और सिविल अस्पताल में भी जो है हीट वेव से मुतासर मरीजों को तिब्बी इमदाद देने के लिए खुसूसी वार्ड कायम कर दिया गया है। वार्ड में AC और जो ठंडा पानी और जो ऑक्सीजन की सहूलियात मौजूद है, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है हीट स्ट्रोक में जो है शहरियों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत जो है घर से बाहर ना निकलें। जबकि अगर बात की जाए कराची और सिंध भर में जो है इंटरमीडिएट के होने वाले इम्तहानात की जो है, तो इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी हीट स्ट्रोक के पेश नज़र जो है मुलतवी कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव जो 21 से 27 मई तक जो है पेशगोई की गई है। जी महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने के अलावा बाद अज़ दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाएं झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। जैकबाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मोहनजोदाड़ो और दादू 46, जबकि लाड़काना और नवाबशाह में भी 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।